नमस्कार, एडसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, सीरीज ऑफ लेक्चर हम लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम को कैसे पास किया जाए इस पर हम लोगों ने आयोजित किया है। और अब तक सिविल सर्विस का क्या बेसिक फॉर्मेट है उस पर और किस विषय को लेकर कैसे तैयारी की जाए इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कई विषयों पर हम लोगों ने विशेष तौर पर चर्चा की। आज बारी है हम लोग यह जानने की, पॉलिटिकल साइंस अगर आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रखते हैं तो इसमें क्या ऑप्शंस हैं, कैसे आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और कौन कौन से इसके पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी आप अच्छा से करें ताकि वो अच्छा मार्क्स दिला सके और साथ में आपको रैंक लाने में भी मदद हो। किताब क्या पढ़ी जाए, किस नज़रिए से पढ़ा जाए, इन सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। और चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर GN त्रिवेदी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और कैसे सिविल सर्विस को एक जो नया अभी रूप दिया जा रहा है उसको भी काफ़ी अच्छी बारीकी तरह से समझते हैं और सिविल सर्विस स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते रहते हैं जो तैयारी करते हैं उनको। तो मैं समझता हूं कि इनका ज्ञान और जो एक कैसे इस कठिन एग्ज़ाम को पास किया जाए, अच्छे अंक लाया जाए, वो जो व्याख्यान देंगे हम सब के लिए लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ प्रोफेसर त्रिवेदी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद अमरेंद्र जी। जैसा कि अमरेंद्र जी ने बताया, आज का विषय पॉलिटिकल साइंस है। सिविल सर्विसेज में किस तरह से इस विषय में अधिक से अधिक मार्क्स लाया जाए। मैं एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बीच बीच में मैं अंग्रेजी का भी प्रयोग किया करूँगा। तो दोनों ही भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि मैं बताऊँ कि पॉलिटिकल साइंस में कैसे आप मार्क्स ला सकते हैं। Normally you have heard me speaking on different themes of contemporary issues like democracy, Naxalite movements, but today I am going to focus on political science as one of the options in civil services. Before I start focusing on a specific political science as a option, as a useful option in civil service examination, I would like to briefly dwell upon the significance of political science. What is the significance of political science? Once you know the significance of political science, it would be better for you to opt this subject to score good marks in this subject. The significance of political science lies in the fact that if you want to understand the relationship between a state and society, then you must have good knowledge of political science. You must have awareness about political science. Unless your exposure to political science is adequate, you won't be able to understand a state-society relationship. What do I mean by a state-society relationship? A state-society relationship, very simple, in a very popular way, I can define that a state is there to promote, protect, enhance the interests of society, and particularly this is in case of democratic state. If a state is democratic, then the demand of society is more from the state. Then the relationship between a state and society is much more vigorous, much more visible. But even where a state is not democratic, there is also a state-society relationship. May not be that vigorous, may not be that visible, but even authoritarian state, it has to cater the needs of society. So any kind of a state, the relevance, the raison d'etre of a state is because of society. Without society, there is no relevance of a state. So whatever the form of a state, democratic, authoritarian, or any form, a state and society both have to interact with each other. So this is very important. We are part of society, we are a member of society, we have lot of expectations from the state. So there is bound to be a constant interaction between a state and society, and how this dynamics of a state and society operates, that you can know only through political science. Or I may say that if you have understanding of the political process, then you can immensely
benefit. So here lies the significance of political science. The other aspects of this significance, the other aspects of importance of political science lies in the fact that policy making is the job of a state. How policies are made, how policies are not made, what is the objective of policy, is there any demand for policy making, or a state takes initiative on its own. These are the aspects related with policy making. You know, if there is a problem of unemployment, there is a problem of illiteracy, there is a problem of malnutrition, there is a problem of violence, any kind of problem society is facing or a state is facing, then how to solve it? You know, policy making comes as a form of solution to a problem. It comes as a form of redressal of a problem. It comes as a form of creating a structure which could remove the problem. For instance, the problem of unemployment. There are number of opinions, number of ideas how to remove unemployment. But if you really want to remove employment, then you have to incorporate all these opinions, all these ideas in one singular form, and that singular form comes out in the form of policy making. So policy making, in fact, the demands made by society on the state, these demands are translated into the form of policy. So policy making is very important because they respond to your demands, they fulfill your demands. You know, so the policy making is not something which is which could be only comprehended by experts and those who are policy makers. But policy making, the basic idea, the underlying idea behind policy making is to solve human problem in any society. Again, I can say that any form of a state, any democratic, authoritarian, whatever, a state makes policies to solve human problems. Human problems are the problems of employment. I don't want to repeat it again. So policy making is very important aspects of political science. Is a very important aspects of academic discipline of political science, and that the nitty-gritty, the importance, significance, components of policy making you can know through political science. So political science that way is very important, very significant discipline. You know, the other significance of political science, that you also know what kind of system prevails in the state, what is the mode of governance, whether this is a democratic mode of governance or authoritarian mode of governance, whether it enhances rights or it constrains rights. All these things depend on your understanding of mode of governance. This governance is only for the benefits of a particular section of society, or the governance is inclusive, it is for the benefit of entire society. That you can know only when you have fair idea of governance. What is governance? Governance is meant for whom? Why there is a need of governance? It's exclusionary governance or inclusive governance. Exclusionary governance means that governance or the state through its policies and programs only supports a particular section of society, only supports the dominant section of society. It does not support the vulnerable section of society, weaker sections of society. They are excluded from the policies and programs of the state. Then this is not a good governance. If you want to have a good governance, if you want to have a democratic governance, then you need to address the problems of each and everybody. You have to include both dominant as well as weaker sections of society. In other words,
there is a need of inclusive governance, there is a need of democratic governance that takes care of each and everybody. So, the mode of governance, the thrust of governance, the objectives of governance, you also know through political science. Political science is all about governance, how to govern, how to form government. So, these ideas about governance, ideas about the working of government, formation of government, you get it through political science. So, that way political science is again very important, very significant for our day-to-day understanding or a day-to-day conduct of our life. The third significance of political science is that human dignity is very important. Human being, after all, what is the difference between animal and human being? You can treat animal in any way, they are not going to protest. But human beings, they want to preserve their dignity. They want that their dignity should be acknowledged, their dignity should be recognized, and for that makes human being distinct, that makes human being separate from all other creatures of the world. Realizing this, each and every country gives human rights. Every citizen, every member of a state is endowed with rights, certain rights. And these rights, only you have a better idea of your rights, you have better idea of the plan of your empowerment only through political science. If you do not have adequate knowledge, sufficient knowledge of political science, then I am afraid you may not be able to understand different kinds of rights given by the state. Rights are given by the state, but these rights can be violated. Unless you claim, unless you demand protection for your rights, they cannot be protected by the state. Even democratic states sometimes falter. It is not readily available to protect your right unless you are aware of your rights, unless you are aware of violation, unless you are aware of protection. It is very difficult to protect your rights. So, human rights, the knowledge of human rights, the knowledge of your own rights, the knowledge of your empowerment, the knowledge of yourself, all these some way or other way related with the study of political science. 2-3 points regarding the significance of political science. Environment is it's a burning issue. Everybody is talking about environment. We need sustainable environment. We are not the last generation to use the resources. We have to protect the resources for the coming generation, and we can protect the resources, we can sustain the resources only when we are sensitive to the issue of environment. The process of sensitization also in a way comes through political science. It has become one of the leading topics of political science in different universities of the world, not only in India, but different universities of the world. Feminism is also very contemporary. With the expansion of democracy, there is a demands of rights, there is a demands of equal rights. Women groups, they have been long deprived of equal rights. They are questioning the continuity of patriarchy. They are making assault on patriarchy. So, feminism has come up as one of the most important aspects of political science. This other equal half, how to ensure them equality in terms of right, in terms of employment, in terms of so many things. So, feminism is also one of the important aspects of political science that explains the significance of political science. Last but not the least, peace and violence. We are today violence is a common occurrence. You find the spectacle of violence everywhere. So, how to minimize violence, how to eradicate, remove, eliminate violence from our society. This is a very important, this is a most challenging task before human society in the 21st century. How to do that? How to counter the occurrence of violence? This we also know it through political science.
So this is the importance, significance of political science. The second aspect, utility of political science. Now I directly come on political science as an option in civil service examination. Utility of political science as option in UPSC. यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस को ऑप्शन के तौर पर हम कैसे देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल साइंस एक बढ़िया ऑप्शन है. यू कैन फेच गुड मार्क्स, लेकिन उसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें. मार्क्स लाना, अंक प्राप्त करना आसान है, लेकिन ये आसानी तभी हो सकता है जब कुछ बुनियादी बातें हैं जिसको आपको अपने दिमाग में रखना होगा. और ये बुनियादी बातें क्या हैं? पहली चीज़, यू कैन स्कोर good marks provided there is a conceptual clarity about basic concepts. अगर आप conceptual clarity आपके पास नहीं है तो आप मार्क्स अच्छा नहीं ला सकते. conceptual clarity से मेरा मतलब है कुछ बुनियादी सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के बारे में ठीक तरीके से उसको समझना. जैसे राज्य क्या है, समाज क्या है, स्टेट क्या है, सोसाइटी क्या है, अधिकारों से आपका मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस. इन सब चीज़ों के बारे में जब तक आप स्पष्ट नहीं होंगे, जब तक आप उनको ठीक तरह से भली भांति नहीं समझ जाएंगे, आप संभवतः पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते. इसलिए पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए यह आवश्यक है कि आपको इन बुनियादी सिद्धांतों के बारे में स्पष्ट जानकारी हो, कोई दुविधा या भ्रम की स्थिति ना हो. दूसरी चीज़, पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स लाने के लिए एक जो दूसरी शर्त है वह यह है कि आप में यू मस्ट हैव एनालिटिकल एबिलिटी, बिकॉज एनालिटिकल एबिलिटी एनेबल्स यू, हेल्प्स यू टू फेच गुड मार्क्स. एनालिटिकल एबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि आप में विश्लेषण करने की क्षमता. यू मस्ट हैव कैपेसिटी टू एनालाइज. Unless you have capacity to analyze, it is very difficult, because political science is based on theories, concepts, and these theories and concepts, they are not existing in isolation. They are being driven from society, from the interaction between a state and society. They are driven from social practice. तो उससे निकाल करके एक उनका सिद्धांत बनाया गया. तो इसको कैसे आप उसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि किस तरह से समाज और राज्य के बीच में परस्पर संबंध है, और ये परस्परता में कौन कौन से सहायक तत्व हैं, कौन कौन से बाधक तत्व हैं. इनको समझने के लिए आप में एक विश्लेषण करने की क्षमता. विश्लेषण से मेरा अभिप्राय क्या है, एनालिसिस से मेरा अभिप्राय क्या है. देखिए, एनालिसिस करने के लिए एक लॉजिकल कोहेरेंस बहुत ज़रूरी है. तार्किक तरीके से अपनी बातों को रखना, पहली चीज़. दूसरी चीज़, किसी विषय का, जिस विषय का आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उस विषय के महत्वपूर्ण पहलुओं से वाकिफ़ होना. महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी आपको होनी चाहिए. मतलब अवेयरनेस ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट डिटेल्स ऑफ द टॉपिक यू आर गोइंग टू एनालाइज. तो एनालिसिस के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण अगर पक्ष छूट जाता है तो फिर आपका एनालिसिस जो होगा अधूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा. इसलिए जो महत्वपूर्ण जितने भी उसके पक्ष हैं, जितने भी तत्व हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक बढ़िया विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते हैं. तीसरी चीज़ जो एनालिसिस के लिए ज़रूरी है वह है ड्राइंग कंपैरेटिव एनालॉजी. आपको एक तुलनात्मक विधि को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मानव अनुभव है, ऐसा नहीं है कि जो हमारा मानव अनुभव है सिर्फ हमारा ही है. इस तरह का अनुभव आपको अन्यत्र भी मिल सकता है, दूसरी जगह पर भी मिल सकता है. तो एक ही तरह के समान अनुभवों का तुलना करना, आप अपनी बात रखते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उस विश्लेषण को मजबूत करने के लिए, पुख्ता बनाने के लिए आप कहते हैं कि इस तरह की बात यहाँ भी है, वहाँ भी है. तो उससे आपके विश्लेषण की सार्थकता सिद्ध होती है. विश्लेषण एक सार्थक है, मजबूत विश्लेषण है, एक कन्विंसिंग है, परसुएसिव है. इसके लिए यू हैव टू ड्रॉ कंपैरेटिव एनालॉजी. अंतिम जो विश्लेषण की जो बात है वह यह है कि कैसे आप यू हैव टू साइट रेलिवेंट एंड एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड थियरीज एम्प्लॉयड इन एनालिसिस. आप कोई भी बात जल्दी से समझाने के लिए
या कोई भी विश्लेषण को मजबूत करने के लिए यह भी जरूरी है कि आप उपयुक्त और प्रसंग से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करें, उदाहरण दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो विश्लेषण में प्रखरता आ जाती है, प्रखर विश्लेषण कहला सकता है। तो ये सारी चीज़ें एनालिटिकल एबिलिटी अगर है आपके पास, और एनालिटिकल एबिलिटी अगर डेवलप कर लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम जो बात है पॉलिटिकल साइंस एक ऑप्शन के तौर पर कैसे उसमें अधिक बढ़िया अंक प्राप्त किया जाए, इसके लिए है कि आपको फुल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हैपनिंग्स ऑफ बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। जो समकालीन घटनाएं हैं, चाहे वो राजनीतिक घटना हो, चाहे वो आर्थिक या सामाजिक घटना हो, जो समकालीन है उसके बारे में आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए आपको अखबारों का सहारा लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको पत्र पत्रिकाओं से संबंध निरंतर बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि आप में अवेयरनेस होनी चाहिए। आप कोई भी मुद्दा जो चर्चा में है देश के अंदर या विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में या राष्ट्रीय जगत में, जो चर्चित विषय है उन चर्चित विषयों का पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तब जाकर के आप, जैसे उदाहरण देना होगा तो आप अगर जानकारी है समकालीन विषयों का, चर्चित विषयों का जो चर्चा में है, तो आप तुरंत उदाहरण दे सकते हैं। तो ये भी पॉलिटिकल साइंस में जरूरी है कि आप समकालीन विषयों के बारे में आपके पास पूरी जानकारी हो। अगर पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि चर्चा में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से विषय हैं जो चर्चा में हैं, बहसें हो रही हैं, लेख आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं। अगर उसकी जानकारी आपको नहीं होगी तो फिर आप एनालिसिस करने में चूक करेंगे। आपका जो एनालिसिस है वह एक प्रखर एनालिसिस नहीं होगा। प्रखर एनालिसिस करने के लिए इनकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अब जो पॉलिटिकल साइंस एक ऑप्शन के तौर पर कैसे इसमें अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, इसका मैंने आपको एक परिचय दिया, एक प्रस्तुत किया, रूपरेखा प्रस्तुत किया। अब मैं सीधे पॉलिटिकल साइंस जो है उसके पेपर्स के ऊपर मैं आ जाता हूं कि क्या है, कैसे आपको पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहिए। अगर आपने इफ़ यू हैव ऑप्टेड पॉलिटिकल साइंस एज वन ऑफ द ऑप्शंस इन सिविल सर्विसेज, देन नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में देयर आर 2 पेपर्स, पॉलिटिकल साइंस 1 एंड पॉलिटिकल साइंस 2। अब सिलेबस तो आप कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन एक सिलेबस का ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ाई करनी है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस जो पहला सेक्शन है पॉलिटिकल, उसका नाम है पॉलिटिकल थियरी एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर है। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में क्या पढ़ना है? देखिए, पहला पेपर है पॉलिटिकल थियरी एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और इस पहले पेपर के 2 भाग हैं, 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको क्या पढ़ना है? सेक्शन ए में मुख्य रूप से आपको पॉलिटिकल थियरी की चीज़ें पढ़नी है और कुछ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। जो सेक्शन ए में है, कंसेप्ट्स में आपको लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब चीज़, राइट्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद आपको पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्लेटो है, अरिस्टोटल है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, इनके बारे में पढ़ना होगा। फिर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, एंशिएंट टाइम के इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर सेक्शन ए में आपको डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना होगा। फिर आपको स्टेट एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना होगा, रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट थियरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो ये सेक्शन ए में आपको, फर्स्ट पेपर के सेक्शन ए में ये चीज़ें, कंसेप्ट, पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव थियरीज, इसके बारे में पढ़ना होगा। तो ये पेपर फर्स्ट का सेक्शन ए हो गया। अब सेक्शन बी में आप, दूसरा सेक्शन बी है फर्स्ट पेपर का, इसमें मुख्य रूप से इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को पढ़ना है, संबंधित चीज़ों को पढ़ना है। जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट,
नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ना है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त आपको प्रियम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ पढ़ना है। इसके बाद आपको यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, पावर्स क्या हैं, एक इंस्टीट्यूशंस का दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेशन क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको स्टेट के बारे में पढ़ना है। इंडिया में फेडरल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम में बहुत सारे स्टेट्स हैं, और उस स्टेट्स के बारे में आपको पढ़ना है कि स्टेट में कैसे फेडरल सिस्टम काम करता है, स्टेट में कैसे स्टेट असेंबलीज काम करती हैं, और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। स्टेट के बाद फिर आपको लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। ख़ास तौर पर जब से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद देयर इज अ मोर एंड मोर फोकस ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट programs and policies, मनरेगा and Indira Awas Yojana, ICDS programs, all development programs, they are rooted through Panchayati Raj institutions. So there is a special thrust on Panchayati Raj institutions, local level democracy, grassroots democracy. It has become one of the important subjects these days. The Panchayati Raj institutions were also earlier, but they have acquired special significance, especially after 73rd constitutional amendment. So union government, state governments, and then Panchayati Raj institutions. Other aspects, social movements. In India there is a social peasant movements, there is a women's movement, Dalit movements, backward caste movements. There are so many movements, and that movements you have to study. India is also facing terrorism, so you have to study terrorism also. आतंकवाद क्या है, आतंकवाद के कारण क्या है, आतंकवाद कैसे कहाँ कौन से किन राज्यों में फैला हुआ है, और इससे निपटने के लिए सरकार और राज्य किस तरह की नीतियाँ और किस तरह के उपाय बना रहे हैं, सोच रहे हैं, ये आपको पढ़ना है। तो ये 2 सेक्शन है पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर का। सेक्शन ए जिसमें पॉलिटिकल थियरी और थॉट से रिलेटेड सवाल है, और सेक्शन बी में मूलतः इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पर सवाल है। अब पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड हम लोग देखते हैं। पेपर सेकंड में क्या पढ़ना है। पेपर सेकंड में इंटरनेशनल रिलेशन एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना है। ये इंटरनेशनल रिलेशन एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का है। इंटरनेशनल रिलेशन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये आप बीए में पढ़ते हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में पढ़ते हैं। तो जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है या नहीं भी किया है तो पढ़ सकता है। और इसका भी सिलेबस जो है, इसमें भी 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में मुख्य रूप से आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। मुख्य रूप से आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। इसमें थियरीज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सिस्टम थियरी है, इंस्टीट्यूशनल थियरी है, न्यू इंस्टीट्यूशनल थियरी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है। तो ये आपको थियरीज ऑफ पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अप्रोचेस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये आपको पढ़ना है। थियरीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, आपको पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पढ़ना है, आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सिलेबस है, कहीं भी किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर जो है वही सिलेबस यहाँ भी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। ये आपको हर जगह थियरीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे, पॉलिटिकल कल्चर पढ़ेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पढ़ेंगे। और किसी भी सिलेबस में आप देखेंगे तो ये सारे सिलेबस के पार्ट हैं। और इसके साथ साथ इस थियरीज में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थियरीज के साथ साथ आप पेपर सेकंड के सेक्शन ए में ही इंटरनेशनल रिलेशन की थियरीज पढ़ेंगे, जैसे रियलिस्ट थियरी, क्लासिकल रियलिस्ट थियरी, न्यू रियलिस्ट थियरी, मार्क्सिस्ट थियरी, लिबरल थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ये सारे इंटरनेशनल रिलेशन के जो थियरीज है, इसको भी आपको सेक्शन ए में पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिकल साइंस के दूसरे पेपर में। तो ये पॉलिटिकल साइंस का दूसरे पेपर का सेक्शन ए हो गया। अब आपको सेक्शन बी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। अब सेक्शन बी में मुख्य रूप से इंडिया से रिलेटेड, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये करके सेक्शन बी का शुरू होता है।
सेक्शन बी में इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसमें जो मेन फोकस होता है, द मेन थ्रस्ट ऑफ दिस सेक्शन ऑफ पेपर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. India foreign policy, what are the determinants of Indian foreign policy? What are the principles and objectives of Indian foreign policy? इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा. इसके अलावा इंडियाज़ रिलेशन विथ USA, USSR, चाइना, इंडिया का जो मेजर वर्ल्ड पावर्स के साथ जो रिलेशन है उसके ऊपर आपको ध्यान पढ़ना होगा सेक्शन बी में. इसके बाद इंडिया रिलेशन विथ नेबर, जैसे इंडिया का पाकिस्तान के क्या साथ संबंध कैसा है, बांग्लादेश के साथ संबंध कैसा है, श्रीलंका के साथ संबंध कैसा है, इंडिया का चाइना के साथ संबंध कैसा है, ये आपको इसमें पढ़ना होगा. इसके अलावा आपको जो है इंडियाज़ रिलेशन विथ रीजनल फोरम, सेक्शन बी में ये भी पढ़ना पड़ेगा. सार्क के साथ इंडिया का क्या है, कैसे सार्क में इंडिया की भूमिका क्या है, भारत किस तरह की भूमिका निभाया है, सार्क की स्थापना से लेकर आज तक जो सार्क की जो गतिविधियां चल रही है उसमें भारत की भूमिका क्या रही है, भारत की भूमिका एशियान में क्या रही है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो एशियन का में क्या इसकी भूमिका है. और इस तरह से जो सेक्शन बी है वह मूल रूप से इंडिया का दुनिया के देशों के साथ, इंडिया की विदेश नीति, इन सब चीज़ों से संबंधित है. इसके अलावा इस सेक्शन में कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ भी है. कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में जैसे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इंटरनेशनल टेररिज्म है, एनवायरनमेंट है, और इंडियाज़ का न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है. तो ये 2 पेपर जैसे आपको सेक्शन बी में ये हो गया. तो पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर हैं जिसका कि अभी मैंने एक विस्तार से लगभग एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत किया कि क्या 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 है. फर्स्ट पेपर मैंने बता दिया पॉलिटिकल थियरी और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है. दूसरा पेपर इंटरनेशनल रिलेशन एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है. और दोनों ही पेपर में कौन से विषय हैं उसके बारे में मैंने आपको विस्तार के साथ बता दिया. और ये इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया. अब आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम कैसे करें. विषय का आप समझ गए, तो इस पर जो अध्ययन सामग्री है, अध्ययन सामग्री का जहाँ तक सवाल है उसमें जो बुनियादी बात है उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है. उस बुनियादी बात में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसमें आपको NCERT की 11th एंड 12th की किताब आपको पढ़नी पड़ेगी. 11th की किताब जो है पॉलिटिकल थियरी. पॉलिटिकल थियरी में जो बेसिक कंसेप्ट, मैंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट्स का ज्ञान होना चाहिए. और ये बेसिक कंसेप्ट्स का ज्ञान आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इसको हासिल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है क्लास 11th की जो NCERT की किताब है, जिस किताब का नाम ही पॉलिटिकल थियरी है, उसको अवश्य पढ़ें. इसके अलावा क्लास 11th में ही इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पर NCERT किताब है, उसको पढ़िए. कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो व्यवस्थाएं हैं, उसका विस्तार के साथ 2 किताबें हैं 11th में. एक पॉलिटिकल थियरी की है और दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है. ये दोनों किताब 11th की पढ़िए. और 12th में फिर से 2 किताबें हैं. पहली किताब पॉलिटिकल प्रोसेस है, इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस है, चुनाव से है, सामाजिक आंदोलन से है, पर्यावरण से है. तो पहली किताब 12th में है, उसको पढ़िए. दूसरी किताब जो 12th में है वह इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है. न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इंडिया का दुनिया के देशों के साथ किस तरह का संबंध है, भारत का दुनिया के संगठनों से जैसे एशियान और सार्क का मैंने जिक्र किया उसके बारे में. तो 12th में भी, क्लास 12th में भी NCERT की 2 किताबें हैं, उसको आप अवश्य पढ़ें. 11th में भी 2 किताबें, उसको भी पढ़ें. तो इन NCERT की 11th 12th की किताबों को पढ़ने के बाद आपको पॉलिटिकल साइंस का अगर बहुत गहराई से नहीं तो एक विस्तृत जानकारी तो निश्चित रूप से हो जाएगा. उसको बिना पढ़े हुए आप कहीं और किताबों की ओर ध्यान नहीं दे सकते हैं. रही बात किताबों की, जहाँ तक बात है तो बहुत सी किताबें हैं. अब जैसे पार्ट फर्स्ट के लिए, जैसा कि मैंने बताया, पॉलिटिकल थियरी और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है. उसमें आमतौर पर जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के हैं OP गाबा को पढ़ा करते हैं.
ओपी गाबा अच्छी किताब है। फिर एक ज्ञान सिंह सांधू की एडिटेड किताब है पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत, हिंदी में है, संपादित किताब है और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा ये प्रकाशित की गई है। इसका पब्लिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और जो पॉलिटिकल थियरी के लिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसको हेवुड की किताब पढ़ना चाहिए। हेवुड की किताब पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थियरी 2 किताबें हैं। हेवुड ने इंटरनेशनल रिलेशन पर भी एक किताब अभी जो हाल फिलहाल में आई है उसको भी पढ़िए। हेवुड से आपको पॉलिटिकल साइंस के तह तक आप जा सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की बुनियादी बातें, कंसेप्चुअल बातें आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो इग्नू के नोट्स पढ़ सकते हैं। इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटीज़ का नोट्स कहीं भी आसानी से उपलब्ध है। उसमें भी बहुत साधारण भाषा में, बहुत ही अच्छे तरीके से, स्पष्ट रूप से, अच्छी शैली में चीज़ों की व्याख्या की गई है। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पर, जो भारतीय चिंतक हैं, उनके ऊपर इग्नू का नोट्स बहुत लाभप्रद है। जहाँ तक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए भी इग्नू का नोट्स लाभप्रद है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, विस्तृत जानकारी के लिए आप डी बसु को पढ़ सकते हैं। डी बसु बहुत ही प्रामाणिक किताब है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। और जो बेयर एक्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल में है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ किस आर्टिकल में है, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, राष्ट्रपति शासन किस एक्ट के तहत। तो ये जो बेयर एक्ट्स है, इसकी जानकारी के लिए उसके बेयर एक्ट्स की ये किताब है PN बख्शी की, उसको आप पढ़ सकते हैं। सुभाष कश्यप ने भी किताब लिखा है, संसद के ऊपर लिखा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर लिखा है। लक्ष्मीकांत की एक भारतीय राज्य व्यवस्था है जो हिंदी के बच्चे पढ़ते हैं। इन किताबों को आप पढ़ सकते हैं। तो किताबों का जहाँ तक सवाल है ये है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस चूँकि एक ऐसा विषय है जो समकालीन मुद्दों को, जो समकालीन मुद्दे हैं और जो चर्चित विषय हैं, उन पर सवाल खड़ा करता है। जैसे इंडिया US सिविल न्यूक्लियर डील, ये अभी हाल फिलहाल में ये हुआ है। शायद आपको किसी किताब में इसकी जानकारी ना मिले, तो इसके लिए आपको बहुत सारे जर्नल्स और बहुत से पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेना पड़ेगा। अखबार निरंतर पढ़ना होगा, हिंदू पढ़ना पड़ेगा और जनसत्ता पढ़ना पड़ेगा। जो आपको जर्नल्स हैं, पत्र पत्रिकाएं सब नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जर्नल्स है, जैसे वर्ल्ड फोकस है, वर्ल्ड फोकस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नल है। अब हिंदी में भी इसका प्रकाशन हो रहा है। पहले अंग्रेजी में ये आता था। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप वर्ल्ड फोकस पढ़ सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। सेमिनार भी अब हिंदी में आने लगा है। सेमिनार किसी एक विषय को लेकर के उस पर विभिन्न विचारकों के, विभिन्न स्कॉलर्स के विचार उसमें आते हैं। तो सेमिनार जो पत्रिका है, मंथली पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, और ये भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इसके अलावा फ्रंटलाइन भी पढ़ें। फ्रंटलाइन में भी जो लेख होते हैं, विशेषज्ञों के लेख होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के लेख होते हैं, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। एक और पत्रिका है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भारत में अन्यत्र उपलब्ध है या नहीं है, लेकिन दिल्ली में तो उपलब्ध है, शोधार्थी। ये CSDS है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, राजपुर रोड पर है दिल्ली में। इनके द्वारा प्रकाशित की जाती है शोधार्थी। इसमें भी अच्छे लेख आते हैं। इन लेखों को पढ़ करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सी किताबें हैं, लेकिन जिन किताबों का जिक्र मैंने किया और जिन जर्नल्स का जिक्र किया, अगर इसको व्यवस्थित तरीके से अगर आप इसका अध्ययन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में आप अच्छे अंक नहीं ला सकते। पॉलिटिकल साइंस में अच्छा अंक लाना बहुत ही आसान है, बशर्ते कि जिन बातों का मैंने उल्लेख किया उन बातों को आप ध्यान में रखें, उसको गंभीरता से लें और ठीक उस तरह से तैयारी करें, तो फिर अंक लाना कठिन काम नहीं है। बहुत सी चीज़ें तो आप अगर समकालीन विषयों से वाकिफ़ हैं, समकालीन विषयों से आप निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं,
उसका निरंतर उसको आप देखते रह रहे हैं और उसको मन में बिठाए हुए हैं तो आप कर सकते हैं। जहाँ तक आपको एनालिटिकल कैपेसिटी को बढ़ाने की बात है, एनालिटिकल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अखबारों के संपादकीय पढ़ना चाहिए। एडिटोरियल जो आता है, हिंदू में जो एडिटोरियल आता है, जनसत्ता के जो एडिटोरियल हैं, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण कोई ऐसा नहीं है कि कोई गिफ्टेड है, आप अगर उसको चाहें तो विश्लेषण की क्षमता का विकास कर सकते हैं। और इस क्षमता के विकास में अखबार के एडिटोरियल बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। तो जो बच्चे अपने एनालिटिकल कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें एडिटोरियल को पढ़ना चाहिए। एडिटोरियल को पढ़कर अपने शब्दों में लिखना चाहिए। अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा, हिंदू का एडिटोरियल पढ़ा, जनसत्ता का, जो हिंदी के बच्चे हैं जनसत्ता के एडिटोरियल पढ़े, उसको पढ़ने के बाद समझ करके फिर आप अपनी भाषा में लिखें। अगर इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आप में कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर एक विश्लेषण करने की क्षमता आ गई। तो विश्लेषण करने की क्षमता अगर आप में है तो पॉलिटिकल साइंस में अच्छे अंक प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। अंत में जो पॉलिटिकल साइंस है, ये तो सिविल सर्विस की बात रही, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की उपयोगिता सिर्फ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तक ही सीमित नहीं है। पॉलिटिकल साइंस की उपयोगिता सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अलावा भी है। जैसे आज पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स आसानी से लॉ कर रहे हैं। लॉ और पॉलिटिकल साइंस का बड़ा सीधा संबंध है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप शुरू से पढ़ रहे हैं, क्लास 11, 12 से लेकर BA, MA तक पढ़ते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो लॉ में जा सकते हैं। अब 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है लॉ का, आप उसमें जा सकते हैं। 3 साल का भी लॉ कर सकते हैं। तो लॉ का सिर्फ कोर्ट्स में आप वकालत ही नहीं कर सकते, बल्कि बैंक में लॉ ऑफिसर की ज़रूरत है, विभिन्न सरकारी संगठनों में लॉ ऑफिसर की ज़रूरत है। तो लॉ और पॉलिटिकल साइंस का एक सीधा संबंध है। इसके अलावा बहुत सारे NGOs हैं जो पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं। अब पब्लिक पॉलिसी स्टेट के द्वारा, पॉलिसी जितनी भी नीतियों का निर्माण राज्य करता है, और नीतियों के बारे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ते हैं, पब्लिक पॉलिसी कैसे बनाया जाता है, पब्लिक पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। तो पब्लिक पॉलिसी, ये जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे देशी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे विदेशी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये सारे पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं। अब जैसे दिल्ली में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च, वहाँ पर पब्लिक पॉलिसी की बात होती है। तो उसमें आप बहुत से NGO में पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलता है, और उनका करियर बहुत बढ़िया करियर है। आप देश विदेश घूम सकते हैं, आप समाज और राज्य के बीच संबंध क्या है इसको बखूबी समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स का आज डिमांड UN एजेंसीज में बहुत है। यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज है, जैसे UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, जिसको कि हम UNDP के नाम से जानते हैं। UNDP में आज पॉलिटिकल साइंस के सैकड़ों स्टूडेंट्स जा रहे हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में आपको जानकारी है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैसे पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट का कैसा संबंध है, इसको पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स बखूबी समझते हैं। इकोनॉमिक्स वाले सिर्फ डेटा की बात करेंगे, सिर्फ एम्पिरिकल बातें करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स उसके पीछे का पॉलिटिक्स क्या है, कैसे पॉलिसी बनाया जाता है डेवलपमेंट का, इसकी जानकारी उनको होती है। तो इसलिए UNDP में बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के जा रहे हैं। यूनिसेफ में जा रहे हैं, चाइल्ड राइट्स क्या है। ICDS का प्रोग्राम भारत सरकार की बहुत सी चल रही है, उसमें ICDS में यूनिसेफ उसको फंड करता है। फिर IPC प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इसमें भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो यूनिसेफ में भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स की बड़ी डिमांड है। यूनिसेफ हो गया, UNDP हो गया। तो बहुत से पॉलिटिकल साइंस का करियर जो है सिर्फ सिविल सर्विस तक ही सीमित नहीं है, लेकिन सिविल सर्विस के लिए जैसा कि मैंने बताया, इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रख करके अगर गंभीरता से अभ्यास करेंगे, गंभीरता से उन जिन पहलुओं का मैंने जिक्र किया है उस पर ध्यान देंगे, तो अंक प्राप्त करना कठिन नहीं होगा, बड़े आसानी से आप अंक हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। खास करके जो पॉलिटिकल थॉट के बारे में धारणा है कि विविध या बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो अपने तरह से राय रखते हैं, तो उसमें एक सिविल सर्विस स्टूडेंट को क्या रास्ता अपनाना चाहिए? दे शुड प्रेजेंट द बैलेंस व्यू, या दे कैन टॉक अबाउट द ट्रूथ, या विच कैन बी सुटेबल टू इंडिया? व्हाट कुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम? पॉलिटिकल थॉट की सबसे जो जरूरी चीज़ें है, हम लोग अलग अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग हॉब्स के संप्रभुता का सिद्धांत,
अब संप्रभुता के सिद्धांत अलग से अगर आप पढ़ेंगे तो आप कठिनाई का अनुभव करेंगे और आपका उत्तर भी बहुत विश्लेषणात्मक नहीं होगा। अगर हॉब्स संप्रभुता की बात क्यों कर रहा है, एक खास किस्म के संप्रभुता की बात करता है, क्या आप संप्रभुता के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, संप्रभुता जो कहे उसको उसका पालन करना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको संदर्भ समझना पड़ेगा। जिस संदर्भ में 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में जब हॉब्स लिख रहा था, 15वीं 16वीं शताब्दी में, उस समय इंग्लैंड की राजनीतिक दशा क्या थी। इंग्लैंड में सिविल वॉर की सिचुएशन थी और सिविल वॉर से बचने के लिए एक संप्रभुता, एक मतलब मजबूत स्ट्रॉन्ग सोवरेन स्टेट का होना जरूरी था। इसलिए उस सोवरेनिटी की उस तरह की बात करता है। तो पॉलिटिकल थॉट में सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो कि बहुत ये कमी है पढ़ाने में भी और पढ़ने वालों में भी, कि उसको कंटेक्चुअलाइज करके नहीं पढ़ते। पॉलिटिकल थॉट बड़ी आसानी से आपके समझ में आ सकती है जब उसको कंटेक्चुअलाइज आप कर दें। एक कॉन्टेक्स्ट में कोई भी थिंकर, कोई भी चिंतक अगर लिखता है तो उसका एक संदर्भ होता है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संदर्भ। जैसे गांधी अपनी बात रख रहे हैं, अहिंसा की बात रख रहे हैं, तो उपनिवेशवाद की अगर जानकारी नहीं है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में अगर आप नहीं जानेंगे तो गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को आप ठीक से समझ नहीं सकते। तो किसी भी पॉलिटिकल थॉट के थिंकर्स को पढ़ने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उस किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा है। मैकियावेली जो है, प्रिंस लिख रहा है, तो प्रिंस लिखने के समय इटली की स्थिति क्या थी, राजनीतिक सामाजिक स्थिति क्या थी, उसको अगर समझ लेंगे आप तो मैकियावेली के सारे सिद्धांत को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। संदर्भों को समझना जरूरी है। आमतौर पर विश्वविद्यालयों में संदर्भों को नहीं बताया जाता है, चिंतक के सिद्धांतों को अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की जाती है, जिससे स्टूडेंट्स को भी काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए आप जो भी पॉलिटिकल थॉट की तैयारी करें, उसको, उसका कंटेक्स्ट, उसका हिस्टोरिसिटी जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर जान लिया तो फिर उसके कंसेप्ट बड़े ही आसानी से उसके समझ में आ जाएंगे। तो उसके लिए जो पुस्तकें उपलब्ध हैं वो क्या, पहली बात तो है कि वैसे पुस्तकें उपलब्ध हैं, और दूसरी बात उपलब्ध है तो कहाँ जाए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने वाले में भी वैसे भी बहुत छात्र हैं जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस नहीं रहा है। हाँ, उसके लिए जैसा कि मैंने दो बातें अभी अपने व्याख्यान में बताया कि पहली बात, जैसे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इनकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इग्नू का नोट्स बड़े ही अच्छी शैली में, बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही उपलब्ध है। और इग्नू की क्लासेस भारतवर्ष के हर कोने कोने में हो रहा है, तो उनका स्टडी मटेरियल बेचते हैं, आप खरीद सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पर और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पर। मैंने देखा है, बहुत ही बढ़िया है। उसको पढ़ने से आपको संदर्भ और कंसेप्ट्स भी आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी किताबें जो हैं, 11-12 की किताबें आप लेकर पढ़ सकते हैं। और जो 11-12 के पहले जो पुरानी किताबें एनसीईआरटी के, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक दर्शक हैं राजस्थान से, अशोक जी हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार अशोक जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। उनसे संपर्क टूट गया है, फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जी। तो एक तो इग्नू मटेरियल्स जो हैं वेस्टर्न थिंकर एंड इंडियन थिंकर्स के बारे में, दोनों के बारे में अच्छी जानकारी देता है, और एनसीईआरटी के मटेरियल आप बता रहे थे। तो इसको पढ़ते समय एक तो हुआ कंटेक्स्ट में पढ़ना, परिप्रेक्ष्य में पढ़ना, और जो तथ्यों को उसमें दिया गया है उसको एक समस्या आता है कि अभी के परिप्रेक्ष्य में, अभी वर्तमान परिस्थितियों में किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए, उसके लिए क्या मापदंड अपनाना चाहिए या कौन तरीका अपनाना चाहिए? देखिए, कोई भी जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जब आप पढ़ाएंगे तो आप प्राचीन यूनान का उल्लेख जरूर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र शुरू वहीं से हुआ था। अभी भी स्विट्जरलैंड में या स्थानीय स्तरों पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई पड़ता है, लेकिन लोकतंत्र के सामने उस समय जो चुनौतियां थी और आज भी जो चुनौतियां हैं, दोनों में भिन्नता है। आप जब उत्पत्ति दे रहे हैं या परिचय दे रहे हैं डेमोक्रेसी पर सवाल आते हैं, तो सवाल आने पर थोड़ा ऐतिहासिक आप बताना पड़ेगा, उत्पत्ति कैसे हुई इस शब्द का, कहाँ से हुआ। इसके अलावा एक बिहार से भी दर्शक हैं, गीता जी हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए जी, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम। हाँ नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मैं जानना चाहती हूँ कि अगर सर ऑप्शनल में नहीं रखते हैं तो ये
जीके में अलग से पेपर में आता है ना सवाल, तो उसके लिए कुछ बुक्स। ओके। ओके, इनका कहना है कि अगर पॉलिटिकल साइंस हम ऑप्शनल के तौर पे नहीं रखते हैं तो और सामान्य अध्ययन की तैयारी करें तो उसके लिए बुक की जानकारी चाह रहे हैं। समान अध्ययन इनको लिए मेरे पास एक जवाब है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों हम लोगों ने सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें उस पर चर्चा किए थे। वो आप हमारे वेबसाइट CEC का वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ एक यूट्यूब का आपको आइकन मिलेगा। यूट्यूब के आइकन क्लिक करेंगे तो आप जितने हम लोग लेक्चर करवाते हैं उसको वहाँ उपलब्ध है, उसको आप सामान्य अध्ययन के लेक्चर को सुनिए तो आपको पता चल जाएगा कि सामान्य अध्ययन की अच्छी से तैयारी कैसे की जा सकती है और कैसे अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है। एक बलवंत जी हैं महाराष्ट्र से, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया सवाल पूछिए। सर गुड आफ्टरनून सर। जी हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसको हम ऐसे में कैसा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे का सर 2000 का सर एक स्पेशल पेपर है सर, सर 200 का 200 मार्क्स, ठीक है। तो उसको हम सर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को सर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा प्रश्न है इनका। ऐसे बहुत ऐसे का 200 मार्क्स है और विविध सब्जेक्ट को उसमें समाहित किया जाता है, पॉलिटिकल साइंस से भी, सामाजिक और कई एकदम ह्यूमन राइट्स। तो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट या इस तरह की चीज़ों को कैसे वो इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिकल ताकि टैकल करें ताकि अच्छे मार्क्स। देखिए एसए का पेपर जो है ना, ये मुख्य रूप से आप दो तरह की, आपकी एक लेखन की क्षमता, विश्लेषण की क्षमता और समकालीन चीज़ों के बारे में आपकी जानकारी कैसी है। जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में बताया कि आप जो समकालीन विषय हैं उसके ऊपर अखबारों की एडिटोरियल पढ़िए। मैंने बताया वर्ल्ड फोकस है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके बारे में वर्ल्ड फोकस में, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में ही ये वर्ल्ड फोकस जर्नल उपलब्ध है। आप सेमिनार जर्नल है, मंथली जर्नल है, ये दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। इसको आप निरंतर पढ़ते रहिए। वर्ल्ड फोकस पढ़िए, सेमिनार पढ़िए, अखबार जैसे हिंदू है उसका एडिटोरियल पढ़िए, आप जनसत्ता का एडिटोरियल पढ़िए। इनको पढ़ने से आपकी समकालीन विषयों के साथ साथ आपके विश्लेषण की क्षमता का भी विकास होगा। आप मौलिक रूप से सोचना शुरू करेंगे और ऐसे में मौलिक रूप से सोचना, विश्लेषणात्मक क्षमता अगर आप में है तो लेख में तो बहुत अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। इसके लिए जरूरी है इन चीज़ों को पढ़ना और देखना। महाराष्ट्र से ही एक और दर्शक हैं, नरेंद्र जी। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। जी नरेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर मेरा सवाल ये है कि हम एक ही टॉपिक के लिए कई ज्यादा बुक पढ़नी होगी क्या? एक ही टॉपिक के लिए कई बुक पढ़ने पड़ते हैं? देखिए एक ही टॉपिक के लिए बहुत सारी किताबों के पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो किताब प्रमाणिक है और जिसको आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि NCERT किताब आप एक उसके लिए फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है। आपका फाउंडेशन मजबूत हो, इसके लिए मैंने बताया कि 11th और 12th की पॉलिटिकल साइंस अगर आप रखते हैं या कोई भी विषय रखते हैं, उसके लिए 11th 12th की किताब फाउंडेशन बनाने के लिए पढ़ना जरूरी है। और पॉलिटिकल साइंस के लिए जैसे मैंने बताया कि हेवुड की किताब आपको पढ़ना जरूरी है। हेवुड की किताब पढ़ने से और दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हेवुड की पढ़ लीजिए। और अगर हिंदी मीडियम के आप हैं, OP गाबा पढ़ लीजिए। बहुत सारी किताबों को पढ़ करके आप भ्रम की स्थिति में आ जाएं, उससे अच्छा है कि आप प्रमाणिक किताब एक ही पढ़िए। लेकिन इन प्रमाणिक एक किताब के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि NCERT की 11th 12th की किताब जरूर पढ़ें। और साथ में दो बातों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे विश्लेषण करें और उसकी प्रस्तुति, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कम भी फैक्ट्स हैं और आपको विश्लेषण करने की कला मालूम है और प्रस्तुत करने की कला मालूम है तो निश्चित तौर पर अच्छे अंक आ सकते हैं। और अखबार का एडिटोरियल इसके लिए विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाने में, संपादकीय अगर आप पढ़ेंगे तो आप लगातार 15-10 दिन के बाद ही आपको लगेगा कि आप में विश्लेषण करने की क्षमता का विकास हो रहा है। महाराष्ट्र से एक और दर्शक है, कौतिक साहब हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, बच्चा जो अपना स्कूल में जाता है तो भी उसको कितने स्टैंडर्ड से ये अपनी जो लाइन है इसके अंदर करनी चाहिए? माफ करिएगा, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, फिर से अपना सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मेरा जो बच्चा है अभी 6वीं में जाता है जी, तो उसको साइंस लाइन में मेरे को डालना है।
नहीं, अभी किस क्लास में पढ़ता है? अभी 6th स्टैंडर्ड में। नहीं, तो ये तो हम लोग इस स्तर पे हम लोग की चर्चा नहीं, हम लोग की चर्चा है आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सिविल सर्विस का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए उचित रहेगा। तो आप इसके लिए आप जो स्कूल्स कॉलेज के जो काउंसलर हैं उससे मिलिए तो आपको ज़्यादा लाभदायक रहेगा और अच्छा गाइडेंस मिलेगा। जी, एक राजस्थान से प्रेमचंद जी हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी सवाल पूछिए। जी मेरा कहना है जो कोई टॉपिक है जी, जो कोई टॉपिक है तो एक मैं सभी दर्शकों से आप जो सेम है, मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कि अपना सवाल पूछने के पहले कृपया टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। क्या सर? अपना सवाल पूछने के पहले कृपया टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। नमस्कार सर। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मैं कहना चाहूंगा कि सर जो कोई एक सवाल है सर, उसमें जो कम लेवल की उसमें अलग दिया हुआ है, जो हाई लेवल की बुक्स है उसमें अलग दिया हुआ है। तो सर मैं आप जानना चाहूंगा कि सर जो सवाल है वो हाई लेवल की ज्यादा अच्छा रहेगा, वो कम लेवल की अच्छा रहेगा? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, कृपया फिर से सवाल करिए। संक्षिप्त सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि सर जी जी सवाल पूछिए। जो कोई न्यूमेरिकल हल करते हैं, जब कोई भी न्यूमेरिकल हल करते हैं सर, ओके, तो सर न्यूमेरिकल हल करते समय सर अलग अलग यदि बुक्स का प्रयोग किया जाए तो सर उसका आंसर भी अलग अलग तरीके से आ सकता है। ओके, इनका कहने का है एक शब्द है तो उसको अलग, हाँ तो उसको अलग अलग। देखिए न्यूमेरिकल जो है ना, न्यूमेरिकल तो एक आपके प्रीलिम से संबंधित है। इसमें न्यूमेरिकल्स का तो आपका गणित जो बेसिक अर्थमेटिक्स है, अगर वो 10th 11th का अर्थमेटिक्स जो है उसको अगर आपने ठीक से कर लिया है तो न्यूमेरिकल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल का तरीका भिन्न हो सकता है, लेकिन अगर उत्तर में भिन्नता हो जाए तो फिर गलत हो जाएगा। अलग अलग तरीके से जो मान्य तरीके हैं, अलग अलग तरीके से आप उसका उत्तर अगर एक ही समान उत्तर निकालते हैं तब ठीक है, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए जो मान्य नहीं है। सवाल न्यूमेरिकल का उत्तर निकालने के लिए 2 3 4 तरीके हो सकते हैं, किसी भी तरीके को आप अपना अगर उत्तर निकाल सकते हैं। सही बात है। तो हम लोग और ख़ास करके एक तो हम लोगों ने बात किया थॉट्स की तैयारी कैसे की जाए, और कुछ छात्रों को दिक्कत है जो इंटरनेशनल रिलेशन के है उस पर भी आता है कि क्या उसमें जो स्टैंड लिया जाए सो क्या स्टैंड लिया जाए, क्योंकि कुछ देशों के साथ हम लोग का संबंध है स्थिर नहीं चलता है, बदलते रहता है। तो वैसी स्थिति में जो प्रश्न का उत्तर दिया जाए उसमें जो उसका स्टैंड हो, क्या स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी तो आनी चाहिए। देखिए बात साफ है, जैसा कि मैंने शुरू में लेक्चर में मैंने कहा कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, भारत का मेजर कंट्रीज़ के साथ संबंध क्या है, रूस के साथ क्या संबंध है, अमेरिका के साथ क्या है, चीन के साथ क्या है, पड़ोसियों के साथ क्या संबंध है, तो इसके बारे में जो मुख्य विवाद के मुद्दे हैं उनको आपको छूना पड़ेगा, उनका उल्लेख करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जो मुख्य विवाद के मुद्दे हैं, अब भारत और पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा कर रहे हैं और कश्मीर का मुद्दा आप छोड़ दें, आतंकवाद का मुद्दा छोड़ दें, सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा छोड़ दें, उन मुद्दों का उल्लेख करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो राष्ट्रहित है, आप राष्ट्रहित की बात या राष्ट्रहित के खिलाफ आम तौर पर नहीं जाना चाहिए। जी चलिए इस पर चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार जी हैं आंध्र प्रदेश से। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस? ओके जी, और पूछिए और कोई। जी हेलो, जी जी सुन रहे हैं आप, सवाल पूछिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? ओके, एंड आर देयर एनी एस्पेक्ट्स सिमिलर बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स? क्या चीज? एनी सब्जेक्ट? एनी it basic question sub he didn't understand what is difference between political similar aspect between two subjects?
Okay, just we are explaining. Okay. You know, there is a difference between political science and public administration. Political science is much broader. Public administration is not that broader. Earlier, public administration was part of political science. There was no separate discipline of public administration. It was being taught, still it is being taught in political science. But seeing the importance of administration, seeing the importance of development administration, there is now a separate public administration. Public administration basically deals with administration, deals with public policy, deals with development, deals with public-private partnership, deals with institutional functioning, administrative institutional functioning. So its major thrust is on administration. There can be variety of there can be different natures of administration, social, political, economic, whatever. But its major thrust is on administration. Whereas political science is much broader. It includes political theory, it includes Indian Constitution, it includes international relation. So it is much wider. Public administration is also empirical. Political science is not only empirical, it is also normative. It also it also talks about ideals. What is, it is not important only in political science, it is not only important what is, it is also important what should be. मैं इसके साथ एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि इनका प्रश्न दोनों में अंतर जानने का नहीं, इनका प्रश्न ये भी है जो निहित प्रश्न है कि दोनों में कौन से ऑप्शनल के तौर पे इनके लिए बेहतर होगा। अच्छा, तो उसका बारे में थोड़ा बता दें। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस जो है, बोथ ये दोनों इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। आमतौर पर बच्चे ये सोचते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस कम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये इंटरेस्ट की बात है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें भी आपको थियरी के बारे में पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी पढ़ना है, इंडियन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में भी 2 पेपर हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जैसा कि मैंने बताया कि आपको एनालिटिकल कैपेसिटी डेवलप करना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा। ये जरूर है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सिलेबस बड़ा है, लेकिन अगर इंटरेस्ट आपका पॉलिटिकल साइंस में और आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख लेंगे तो नंबर नहीं आएगा। तो पहली शर्त है आपके इंटरेस्ट का है, और अगर इंटरेस्ट नहीं है, आप एकदम न्यूट्रल तरीके से रखना चाहते हैं, तो जो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख सकते हैं। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि आज के व्याख्यान से आपको पता चल गया होगा कि पॉलिटिकल साइंस अगर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में रखते हैं तो कैसे इसकी तैयारी की जा सकती है, कैसे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और साथ ही हालांकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं था, डॉक्टर त्रिवेदी जी ने काफ़ी अच्छी तरह से ये बताया कि इसके अलावा भी पॉलिटिकल साइंस वाले विद्यार्थियों के बहुत सारे करियर हैं, तो उसमें भी आप रोज़गार के अवसर तलाश सकते हैं और वहाँ जॉब कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह लेक्चर निश्चित तौर पे आप सबके लिए लाभदायक साबित होगा। तो इस उम्मीद के साथ यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर GN त्रिवेदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से इस विषय को हम लोगों के सामने रखा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।